Assalamu alaikum everyone. After a gap of many days, आपकी assessments हो रही थी, तो we have to start where we left. हम लोग मुस्लिम साइंटिस्ट और सब पढ़ चुके हुए थे, and we have discussed this before. Cytoskeleton and okay. तो साइटोस्केलेटन के बाद मैंने आपको न्यूक्लियस का भी पढ़ाया था, जो कि इज अ सेपरेट स्लाइड ऑन अ डिफरेंट forum. So we have gone into the details of nucleus, and now today I am going to start ribosomes. I'm going to tell you about ribosomes. Okay. Ribosomes are basically tiny granular structure floating in the cytoplasm. दानेदार, अगर दानेदार से स्ट्रक्चर लाइट माइक्रोस्कोप में नजर आ रहा होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप ऑब्वियसली साइज बढ़ाकर भी देख सकते हैं, जिस तरह के ये एनिमेटेड इमेजेस हैं, दीज आर नॉट इवन द इमेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम इनको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देखते हैं इन एनिमेटेड पिक्चर्स, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में साइज बढ़ाकर देख सकते हैं, बट बेसिकली इट्स वेरी टाइनी kind of a granular structure. You cannot, because it acts like a grain, it looks like a grain. छोटा सा दानेदार स्ट्रक्चर जो है ना फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म में। अगर आप एनिमल सेल की डायग्राम देखो यहाँ पर अगर है तो हमें जस्ट सी कि हम पीछे चलते हैं टू शो यू। इसमें भी नजर नहीं आ रहा एज सच। यहाँ पर मोस्टली राइबोसोम्स फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म। ये देखें यहाँ पर दिखा रहे हैं थोड़ा सा, बेसिकली पूरे सेल में फ्लोट कर रही होती है। कैन यू सी द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म? अच्छा, दे एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, ईदर फ्लोटिंग और अटैच्ड। अच्छा हुआ मैं इस डायग्राम पर आ गई कि ईदर दे फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म फ्रीली, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म भी तो एक लिक्विड है ना, सेमी विस्कस, and or they attach themselves on endoplasmic reticulum. जो कि granular structure नजर आ रहा है ना, so that endoplasmic reticulum becomes rough endoplasmic reticulum. But if the endoplasmic reticulum doesn't have ribosomes attached on them, यहाँ पर नजर नहीं आ रही कहीं पे भी, तो that will be called as smooth endoplasmic reticulum, because इसकी appearance ये नहीं होगी तो it will look smooth, but because of ribosomes attached on them, their surface is rough. ऊपर नीचे हो रही है, दानेदार चीजें ऊपर अटैच हो गई हैं, तो the surface has become rough. That's why we call it as rough endoplasmic reticulum. अच्छा, तो ये तो हो गया about their existence. So let's go to our slide. तो either how they are located in the cell, either they are floating or attached. Attached होंगे तो then they will be attached only on endoplasmic reticulum. What are they composed of? What is the composition of ribosomes? Every one of you can add these subheadings into your text by making location of ribosome, by making a point of composition of ribosomes, by making a point of structure of ribosomes, difference of size, functions, ribosomes at rest. This is how learning becomes very easy. Don't need to learn all these things, but you can learn certain points. कि यार what is its location, composition, structure क्या है, function क्या है, size का difference क्या है, and all that. This is how you have to keep things in your mind for a long term. ठीक है, short term में तो आप बहुत सी चीजें रख लेते हैं, but in long run you have to keep small points. अच्छा, so what was the composition of ribosomes? They are made up of equal amount of specific proteins and ribosomal RNA. यानी दोनों की equal amount है proteins, specific proteins obviously,
or ribosomal RNA. I don't know if I have gone into the detail of RNA and DNA, but let me tell you, RNA and DNA are the two type of genetic material. DNA stands for deoxyribonucleic acid and RNA stands for ribonucleic acid. Deoxy और oxy का difference है. Deoxyribonucleic acid, देखो ribonucleic acid, and RNA stands for ribonucleic acids. तो दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ओनली ऑक्सीजन का डिफरेंस है और डबल स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंड का भी डिफरेंस है. लेट मी टेल यू फर्स्ट कि डीएनए में एक पॉइंट पर ऑक्सीजन नहीं होती और आरएनए में उसी पॉइंट पर सर्टेन पॉइंट पर ऑक्सीजन होती है, यानी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल क्योंकि वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लेवल के लिए. तो ये तो समझ में आ गया कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में ऑक्सीजन नहीं है एक जगह पर और राइबोन्यूक्लिक एसिड में ऑक्सीजन है. और दूसरा ये है कि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड होती है, सिंपल एक, और डीएनए काश में वो स्लाइड ऐड कर लेती, और डीएनए में डबल स्ट्रैंड होती है, यानी टू स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड टुगेदर, जबकि आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड ट्विस्टिंग ओवर ईच अदर. ठीक है, ये हो गया. और आरएनए की 3 टाइप्स हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए. अच्छा, मैसेंजर आरएनए एज द नेम शोज ट्रांसफर्स मैसेज. ठीक है, सिंपल में कह देती हूँ कि डीएनए से ट्रांसफर मैसेज कर रहा है प्रोटीन की मेकिंग में. ठीक है, ये एमआरएनए, कैन यू सी दैट, अंदर न्यूक्लियस से आ रहा है, डीएनए से मैसेज लेकर आ रहा है और उसको ट्रांसफर करता है प्रोटीन की मेकिंग में, सिंपल. और राइबोसोमल आरएनए एज द नेम शोज, और आई एम टेलिंग यू हियर, राइबोसोमल आरएनए इज मेकिंग राइबोसोम्स. ठीक है, ट्रांसफर आरएनए इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफरिंग समथिंग हियर. मैं सिर्फ इतना ही बताती हूँ, यही प्रोटीन की सिंथेसिस में बेसिकली अमाइनो एसिड ट्रांसफर कर रहा है. ये जो अमाइनो एसिड स्ट्रैंड अटैच हो रही है ना ऑरेंज कलर की, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड ला कौन रहा है, पकड़ पकड़ के, अकॉर्डिंग टू द मैसेज ट्रांसफर आरएनए. तो आज के लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि एक ट्रांसफर आरएनए होता है, एक मैसेंजर आरएनए होता है और एक राइबोसोमल आरएनए. देयर आर 3 टाइप्स. Ribosomal RNA is making ribosomes along with proteins in equal amount. Okay. Transfer RNA protein synthesis में अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पर. ठीक है, और messenger RNA as the name shows carries the message from DNA और फिर in the making of proteins मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है, in simple words, we are not going into complicated text क्योंकि वो अभी हमारा कोर्स नहीं है, हमारी डिमांड नहीं है. What is the structure of ribosomes? अच्छा, they don't have any membrane. Whenever someone asks you organelle which is not membrane bounded, it is ribosomes. ठीक है, इनका fluid mosaic model की तरह का कोई membrane नहीं है. तो as they don't have membrane, so I must tell you prokaryotes में membrane bounded organelles नहीं होते. तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि आज या कल के लेक्चर में मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए ऑल पॉइंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, लेकिन मैंने आपको प्रोकैरियोट्स का बताया हुआ है that prokaryotes are basically बैक्टीरिया, यानी प्रोकैरियोट में सिर्फ बैक्टीरिया, ये इजी वर्जन बता रही हूँ, मतलब और कोई सेल नहीं है और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है. ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, जबकि यूकैरियोटिक another type of cell is, उसमें प्रोटिस्ट भी आ जाते हैं, उसमें ये भी हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना भी आ जाता है, उसमें फंगस भी आ जाती है, उसमें किंगडम प्लांटी भी आ जाती है, किंगडम एनिमेलिया भी आ जाती है, राइट. So rest of all organisms are in eukaryotic cell organization.
ओनली बैक्टीरिया इज इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनील नहीं होता, और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील नहीं होता। ठीक है, तो राइबोसोम्स होती हैं प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि राइबोसोम इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील। डीएनए फ्लोट कर रहा होता है सेंटर में, और राइबोसोम्स उनके लिक्विड में और इन द सराउंडिंग फ्लोट कर रही होती हैं। सही। सो प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम्स होती हैं, जबकि प्रोकैरियोट में बाकी कोई ऑर्गेनील नहीं होता, ना न्यूक्लियस, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना गोल्गी बॉडीज, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिर्फ राइबोसोम्स, और डीएनए सेंटर में फ्लोट कर रहा होता है। सही। अच्छा, तो coming back to the topic of ribosomes, there is a difference in size of ribosomes. Prokaryotic ribosomes are smaller in size, while eukaryotic ribosomes are larger in size. Size different है, ठीक है। तो ये हम आगे जाकर सेवेडबर्ग यूनिट्स में साइज भी मेंशन करते हैं, बट यहाँ पर डिमांड नहीं है, so I'm not mentioning, but I'm definitely mentioning that prokaryotic ribosomes are smaller in size. Okay. यानी होता तो उसमें भी लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट है, लेकिन छोटा। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चीज़ मैं बताना अब बता देती हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, स्मॉलर सब यूनिट एंड द बिगर सब यूनिट। और हम लोग इवन स्मॉलर सब यूनिट का साइज और लार्जर सब यूनिट का साइज भी पढ़ते होते हैं इन सेवेडबर्ग यूनिट्स। अ साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब द साइज ऑफ राइबोसोम, हिज नेम वाज सेवेडबर्ग। तो उसी पर यूनिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जा रही। सही। So what is the function of ribosomes? The very important function which is protein synthesis. ठीक है, सेल की जो प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी है उसमें राइबोसोम is playing very crucial role, because ये देखिए in this picture ribosome is reading the message of messenger RNA, and I told you earlier कि messenger RNA आ कहाँ से रहा है। Basically DNA consists, nucleus consists of DNA. न्यूक्लियस में है ना डीएनए एंड क्रोमोसोम्स, तो डीएनए पे है सारा मैसेज कि कैसे प्रोटीन्स बनेंगी, कैसे सेल्स बनेंगे, और कैसे फिर मसल्स बनेंगे, और कैसे ऑर्गन्स बनेंगे, और कैसे हमारी आवाज़ होगी, और कैसे हमारी आंखें, हेयर की लेंथ, शक्ल, स्किन का कलर, हमारे फीचर्स। ठीक है, एवरीथिंग इज कोडेड ऑन डीएनए। तो उस मैसेज को रीड कौन करता है? वो डीएनए बहुत सारे जीन हैं, थोड़े थोड़े जीन करके जो है ट्रांसलेट होते हैं इनटू मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है, और वहां पर मैसेज रीड किया जाता है। इतनी आसानी से रीडिंग नहीं हो रही होती, लाइक ABCDEFGH रीडिंग का एक प्रोसीजर है, उसमें स्पेसिफिक केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, बट वो याद मतलब समझ में आ जाता होता है इन हायर क्लासेस। अभी मैं इजी वर्जन दूंगी कि ribosomes actually read the message on messenger RNA, तो दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। उस मैसेज के मुताबिक अमाइनो एसिड्स आते जाते हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स से हमने एक चैप्टर में पढ़ लिया है, और अमाइनो एसिड्स यहाँ पर ला कौन रहा है? ट्रांसफर RNA। ठीक है, तो वैसे एक नॉर्मल क्लास में पूरा पिक्चर बना के बताती होती हूँ, ऑल्दो दिस इज नॉट द टॉपिक, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए कि डीएनए आ रहा है, उसको फिर मैसेंजर आरएनए रीड कर रहा है, और फिर मैसेंजर आरएनए बन रहा है, राइबोसोम्स रीड कर रही हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। मैं बता तो रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने उस वर्जन में नहीं बता रही, मे बी आई विल एड अ स्लाइड। ठीक है, तो राइबोसोम्स आर रीडिंग द मैसेज, अकॉर्डिंग टू द मैसेज अमाइनो एसिड आती जा रही है। ये बीज कौन ला रहा है? ट्रांसफर आरएनए, और ये चेन बनती जा रही है, और इस चेन की 3 डायमेंशनल फोल्डिंग जो है नेक्स्ट होती है इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वहां पर फाइनल हो रहा है काम। ठीक है, ये वाला काम राइबोसोम्स कर रही है। एक चेन बन गई है विच इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन विच फोल्ड्स इनटू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आई थिंक मैंने हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत जिक्र किया है, प्रोटीन्स के टॉपिक में भी थोड़ा बहुत जिक्र किया होगा।
सही. Leaving that thing aside, के प्रोटीन सिंथेसिस का, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि मेजर काम राइबोसोम्स कर रही हैं, विच इज सो इम्पॉर्टेंट कि हमारे सेल्स में बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स होती हैं. आप अगर एक एनिमल सेल की डायग्राम देखें और प्लांट सेल की डायग्राम देखें, यू सी so many tiny granular structures are floating inside the cytoplasm, and many granular structures are even attached on endoplasmic reticulum. Am I right? Because प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. सही. इसीलिए राइबोसोम्स बहुत ज़्यादा है इन द सेल होते हैं. So what happens when ribosomes do not make proteins? There is a time when ribosomes are not involved in protein synthesis. तो तब क्या होता है? तब ये होता है कि ribosomes are at rest. So they separate into small and big unit. ये देखें, small unit और large unit अलग हो रहा है. Small and large unit are dissembling. अलग अलग हो जाते हैं और काम नहीं करते और resting mode पर आ जाते हैं. सही. So this is all about ribosomes. I think I should quickly rewind that ribosomes are tiny granular structures, either floating freely or attached to endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum becomes rough endoplasmic reticulum. Their composition is that they are made up of equal amount of proteins and equal amount of ribosomal RNA. सही है. जो दोनों यूनिट्स बन रहे हैं, इन दोनों की इक्वल अमाउंट से बन रहे हैं. The structure of ribosome is like they don't have membrane, and they are found also in prokaryotic cells. They are found in eukaryotic cells too. So, but there is a size difference. Eukaryotic ribosomes are large in size, and prokaryotic ribosomes are smaller in size. And the size is mentioned in Severberg units, but we haven't mentioned. Okay. The function of ribosome is protein synthesis, which is very important and required in large amount. So ribosomes are also found in large numbers, whether it's a plant cell or an animal cell or even a protease, it is found in large numbers. But when ribosomes are at rest, they are not making proteins. They separate into small and large subunits. They disassemble. So this is all about ribosomes, and this is all about today's lecture. Okay? I'm winding up here, and tomorrow inshallah maybe we will come with a few more organelles starting from mitochondria. ठीक है. Mitochondria हो सकता है, and I can add another slide of protein synthesis जिसमें मैं DNA, RNA और messenger RNA. Hopefully I will remember, and I'm praying कि मैं याद रखूं. सही है. So I'm winding up lecture here. Allah Hafiz and good luck. I'm pausing share. Stop share.